एक्चुअली जो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ रिबन कोई बॉन्ड जदों आप किसी भी कैमिकल इक्वेशनस नूं लिखते हैं तो जिवें मैगनीशियम रिबन नूं आपां बर्न कीता सीगा बर्निंग जदों कीती जाती है दैन ऑक्सीजन गैस जिहड़ी हैगी आ वो प्रोवाइड होंदी है बिकॉज बर्निंग जिहड़ी है दैट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अदरवाइज देयर विल बी नो बर्निंग इफ देयर इज नॉट ऑक्सीजन गैस magnesium plus oxygen it form magnesium oxide. Now see ke here you are seeing two different parts of a reactant किसी भी कैमिकल रिएक्शन या कैमिकल इक्वेशन दे जिहड़े रॉ मटीरियल हुंदे हैं उन्हां नूं रिएक्टेंट्स आपां कहने जो उस तो प्रोड्यूस हुंदा हैगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट क्योंकि इस जो प्रोड्यूस हुंदा हैगा इस करके उस दे विचाले एरो दा साइन लगदा है ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਰੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਓ एरो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये कई बार की होंगे कि आप जो इस कैमिकल रिएक्शन किते करते हैं तो आप हीट करते हैं तो हीट करने लिए एरो दे विच आप या हीट लिख सकते हैं या आप सिंबल पाने इस तरह ट्रायंगल साइन दिस इज हीट सिंबल सिमिलरली जे मान लो यह कैमिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में की गई तो आप इत्थे सिंबल होर देवांगे लाइट का सिंबल है वह सिंबल इस तरह फोटोन दिता जा सकता है या आप ये लिख सकते हैं लाइट तो कई बार ये कैमिकल रिएक्शन किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है कैटालिस्ट विच cannot take part in chemical reaction but they can fasten the chemical reaction वो किसी भी chemical reaction को तेज कर सकते हैं तो in the presence of catalyst so कोई भी chemical reaction है उस दे विच आपां जो भी raw material तो extra उन्होंने provide किया all that things should be mentioned on this arrow whether we are doing that particular reaction in presence of certain acid or a base that is acting as oxidizing agent so वो भी आप इस विच mention कर सकते हैं so many things are there which can be mentioned here so basically reactant product sometimes the product may be more than one then there also we have to mention plus sign in between that तो कई बार की होंदा है कि प्रोडक्ट दे विच कई बार कोई गैस पैदा होती है सपोज प्रोडक्ट दे विच अपने कोले हाइड्रोजन गैस पैदा होगी तो हाइड्रोजन गैस दे नाल आपां इस तरह एरो अप हेड दा साइन लावांगे क्योंकि ये गैस जिहड़ी है ऊपर नूं फ्लाई करती है इस तरह और बहुत सारिया चीज़ां इस दे विच आपां करांगे ये अपने को जोड़ा है भी किसी भी कैमिकल इक्वेशन नूं आपां किवें लिख सकते हैं हुण
इस तो भी थोड़ा होर कन्वीनियंट वे नाल इस कैमिकल रिएक्शन नूं आपां किवें लिखना है। हाउ टू राइट chemical equation in more convenient way. So for that we have to use some symbols like इसे chemical reaction की आपां गल करते हैं, इसे नूं जे आपां होर convenient way च लिखना हो ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਫॉर एग्जांपल ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ Mg। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ that is in the form of O2। तो आप प्लस पा के O2 लिखता, दैन आप एरो पा के मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल लिखांगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल है MgO। हुण देखो इस कैमिकल इक्वेशंस दे विच तुहानूं किते ना किते घाट दिख रही है। मैग्नीशियम इधर एक है, इधर एक है, ऑक्सीजन इधर दो है ते इधर एक है। So this chemical equation it is not balanced, it is not fully balanced, so that in imbalanced chemical reaction what is that called? That is called skeletal chemical equation। That is skeletal chemical equation। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ chemical equation बैलेंस नहीं हैगी ਉਹਦਾ ਨਾਮ skeletal chemical equation ਹੋਵੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ chemical equation 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ that is more convenient। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बैलेंस करने की जरूरत पैनी है, क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिहड़ा है ये हमेशा ही किसी भी कैमिकल रिएक्शन के बारे इसका एक प्रिंसीपल है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड whether it is before the chemical reaction or after the chemical reaction। मास जिन्ना इधर होगा उन्ना ही प्रोडक्ट वाले पासे होगा। सो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस ते ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸੋ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल जिंक प्लस H2SO4 ਇਹ रिएक्टेंट साइड ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ प्लस ਦਾ साइन भी पाया क्योंकि दो अलग अलग सबस्टेंसेस है। तो जिंक एलिमेंट ਤੇ सल्फ्यूरिक एसिड ਜਿਹੜਾ कंपाउंड अपने ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, that is zinc sulfate plus हाइड्रोजन गैस। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर that we have to adopt we have to make one box ਤੇ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਆ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ प्रोडक्ट। लेट्स सी इस विच सब तो पहला नंबर ते जिंक है, फिर इस विच है हाइड्रोजन, फिर इस विच है सल्फर, देन इस विच है ऑक्सीजन। उधरले पासे भी वही आउणगे, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, then ऑक्सीजन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ 1। ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਐਟਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਲਫਰ ਇਹਦਾ 1 ਐਟਮ ਹੈ। ऑक्सीजन ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 4 ਐਟਮਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ 1 ਐਟਮ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਐਟਮਸ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਦੇ 1 ਐਟਮ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 4 ਐਟਮ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਦ ਨੰਬਰ। ਜ਼ਿੰਕ on both side 1 1 means no need to balance it. Hydrogen 2 here, 2 here, it is also balanced. Sulfur 1 here, 1 here, it is also balanced. Oxygen 4 here, 4 here, it is also balanced. So ਇਸ chemical reaction ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ balance ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, we need not to balance, because this chemical equation is following the law of conservation of mass. The mass of each atom in both the reactant and product, that is same. That's why need not to balance it. Now we are taking another example. ਹੁਣ ਆਪਾਂ law of conservation of mass ਦੇ basis ਤੇ, ਇਸ principle ਦੇ behalf ਤੇ chemical equations ਨੂੰ balance ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ balance ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਰਨ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, Fe3O4 plus हाइड्रोजन गैस। सो ये अपने को केमिकल इक्वेशन जी हैगी बनेगी। सो इस केमिकल इक्वेशन दे विच आ पासे अपने को रिएक्टेंट है, आ पासे अपने को प्रोडक्ट। सब तो पहले तो आप इसनूं चेक करांगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड। सो उस लिए आपां नूं उस तरह ही लिखना पैना, जिवें दे कल्ले कल्ले एलीमेंट है, जिवें आयरन है, हाइड्रोजन है ते ऑक्सीजन है। इधरले पासे आयरन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। दैन अदर साइड ते उवें लिखांगे आयरन, हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन। आयरन इधर कितने हैं, 3 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। सो ये बैलेंस्ड नहीं हैगी क्योंकि आयरन, the number of iron in both the reactant, that is mismatching, as well as the case of oxygen, that is mismatching.
but only number of elements of number of atoms of hydrogen, they are constant in both the sides. But on behalf of this, we cannot say that this chemical reaction is balanced. So we have to follow as per law of conservation of mass. So इसलिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ steps ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ follow ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ to balance a chemical equation. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ step ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ step 1, that chemical equation ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ Fe iron plus water, it form Fe3O4 plus hydrogen. तो enclose them in box, सारे ਨੂੰ boxes ਵਿੱਚ कर लो, boxes ਵਿੱਚ करके सब तो पहला ਆਪਾਂ ਹੁਣ second step follow ਕਰਾਂਗੇ। पहला step ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ enclose them in boxes, second step ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ boxes ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ सब तो पहला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ एलिमेंट चेक करना है जिस ਦੇ नंबर ऑफ एटम सब तो ਵੱਧ है। तो ਇਹਦੇ ਚ चेक करो, आयरन ਦਾ ਇੱਥੇ 1 है, हाइड्रोजन ਦਾ ਇੱਥੇ 2 है, ऑक्सीजन ਦਾ ਇੱਥੇ 1 है, आयरन ਦਾ ਇੱਥੇ 3 है, ऑक्सीजन ਦਾ ਇੱਥੇ 4 है ਤੇ हाइड्रोजन ਦਾ 2 है। सो ऑक्सीजन चूज करो। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑक्सीजन ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना है, इधरों नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिख लेने हैं। ऑक्सीजन का इधर नंबर है 1, इधर ऑक्सीजन का नंबर कितना है 4, तो इधर 4 है, इधर 1 है। टू बैलेंस वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 हियर। जो 4 करता है इट मीन ऑक्सीजन के 4 होने चाहिए। सो ऑक्सीजन के 4 करने ये मूहरे आप लगा देना है 4। सो दिस इज द सेकंड स्टेप कि आप कल ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। नाउ स्टेप 3, स्टेप 3 दे विच ऑक्सीजन तो घट जिहड़ा अपने कोले इस विच हैगा उहनूं देखांगे आपां, या आपां कोई भी अपने कोले दो अदर रह गए है। दो अदर किहड़े किहड़े आयरन ते हाइड्रोजन। तो आपां पहला हाइड्रोजन का नंबर देखांगे, केमिकल रिएक्शन में उवें लिखांगे आपां फिर बॉक्सेस विच। हुण नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं आपां। जदों आपां ऑक्सीजन नूं बैलेंस कीता तां अपने कोले नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर किन्ने बन गए 4 × 2 मीन 8, पर उधरले पासे अपने कोले हाइड्रोजन किन्ने हैं 2। तो की करांगे इधरले पासे आपां 4 मल्टीप्लाई करके इनू 8 करांगे। तो हुण जे इनू इक्वेशन च 8 करना हैगा तां ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ 4 लगा देंगे। तो हम हाइड्रोजन का नंबर भी बैलेंस हो गया अपने को। नाउ फॉलो स्टेप 4। स्टेप 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, इत्थों तक आप बैलेंस कर चुके हैं, एज इट इज आप लिखांगे वो जिवें Fe बॉक्स विच हो गया प्लस 4H2O, then Fe3O4 box which plus 4H2। now see number of iron here are, it is 1 and here it is 3, but when ऑक्सीजन देख लो बैलेंस है, हाइड्रोजन देख लो बैलेंस है, दैट मीन Fe3 है तो आप ये मूरे सिर्फ 3 लगावांगे। 3 आप लगाने तो पहले चेक कर लेना है कि
कि इधर Fe का नंबर कितना है 1, इधर आयरन का नंबर कितना है 3, तो इधर आप 3 मल्टीप्लाई करांगे तो इस 3 को आप इस अगे लगा। स्टैप 5 दे विच इस दे बाहरों जिहड़े बॉक्सेस है वो आप रिमूव कर देंगे। रिमूव करके इस इक्वेशन को आप कैमिकल इक्वेशन को सिंपल रूप में आप उसनूं राइट कर देंगे। हुण अपने कोले जिहड़ी एक कैमिकल इक्वेशन बनी है ये पूरी तरह फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस कैमिकल इक्वेशन दे विच क्योंकि हो सकता है कैटालिस्ट यूज होए होण या इस विच हीट यूज हुई होवे या इस विच सनलाइट यूज हुई होवे, सो ऑल द थिंग्स वी हैव टू मेंशन इन एरो। एरो दे ऊपर या थले उसनूं आपां लिखना है। वन थिंग मोर वी हैव टू एक्सप्रैस हियर दैट ये केड़ी स्टेट विच सी वो भी आपां नूं लिखना पवेगा। लाइक आयरन अपने कोले सॉलिड स्टेट च सी तो आप ब्रैकेट विच एस लिख देंगे, एस रिप्रेजेंटिंग सॉलिड। सिमिलरली पानी जिहड़ा आपां लिया दैट वाज इन लिक्विड स्टेट, तो एल वी हैव टू मेंशन हियर दैट इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। सो इस विच अपने कोले जिहड़ा प्रोडक्ट बनिया जिहड़ा आयरन ऑक्साइड सीगा Fe3O4 ये अपने कोले सॉलिड स्टेट बनेगा। ते जिहड़ी हाइड्रोजन है इस विच पैदा हुई हैगी है क्योंकि गैस तुहानूं एरो हेड करके भी इस तरह दस्सिया सी, तो इस नूं जी आपां इहदी ब्रैकेट विच लिखांगे। तो ये सारा कुछ इस दे लास्ट स्टैप दे विच जिहड़ा इस गल दा ध्यान रखिया जांदा हैगा कि उस दियां जिहड़े फिजिकल स्टेट किहड़ी सीगी। कोई भी आपां इस विच आपां कंपाउंड यूज कीता हैगा कैमिकल इक्वेशन दे विच, चाहे वो रिएक्टेंट च है ते चाहे वो प्रोडक्ट विच है, उसकी स्टेट आपां जरूर मैंशन करनी हैगी है। तो ये एक कंपलसरी चीज़ हैगी है। अदर थिंग जिहड़ी मैं तुहानूं पहलां दस चुकिया है कि बहुत सारिया कैमिकल रिएक्शनस हैगियां जिन्हां विच कई बारी हीट भी पैदा होंदी है या कई बारी लाइट भी पैदा होंदी है, तो वो आपां राइट हैंड साइड ते प्रोडक्ट दे विच प्लस पा के नाल लिख सकते हैं लाइक हीट या लाइट। जो उस विचों एमिट होया एवरीथिंग वी हैव टू मेंशन दैट इन दैट कैमिकल इक्वेशन। सो इहदे विच आपां इस कैमिकल रिएक्शन नूं जे मान लो प्रैशर दे विच कीता एटमॉस्फेरिक प्रैशर दे विच, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रैशर भी आपां नूं एरो दे उत्ते मैंशन करेगा करना पवेगा किन्ने एटमॉस्फेरिक प्रैशर दे विच कैमिकल रिएक्शन जिहड़ा वो हुंदा है। फॉर एग्जांपल अपने कोले एक कैमिकल इक्वेशन हैगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड नूं जदों हाइड्रोजन दे नाल रिएक्ट कीता जांदा हैगा तां ये जिहड़ी हैगी अंडर प्रैशर हुंदी है एक्टिविटी, ते उस नूं प्रैशर कितना चाहिए 340 एटमॉस्फेरिक प्रैशर। तां इस प्रैशर दे करके इस विचों अपने कोले CH3OH जिन्हों आपां मिथनॉल भी कहने हैं ये फॉर्म हुंदा है। हुण इहदियां आपां नूं स्टेट्स भी इस विच लिखनियां पैणगियां जो कि कंपलसरी है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, पर जी मिथनॉल बनी है ये लिक्विड स्टेट है। तो आप एटमॉस्फेरिक प्रैशर भी मैंशन किया। सिमिलरली होर बहुत सारी एक्टिविटियां है जिहड़ियां कि सनलाइट की प्रेजेंस दे विच हुंदियां है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड नूं जदों जिहड़ी अपनी फोटोसिंथेसिस वाली कैमिकल रिएक्शन हैगी है, फोटोसिंथेसिस दे विच की हुंदा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, बट वो इस विच की हुंदा है कि बैलेंस जो होंगी है तो इस विच वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होंगी है कैमिकल
रिएक्शन जी फोटोसिंथेसिस की हैगी इस विच अपने को बनेगा C6H12O6 ते नाल ही पैदा होगी 6O2 ऑक्सीजन। बट क्योंकि ये वाली जी फोटोसिंथेसिस की कैमिकल इक्वेशन हैगी है ये लाइट की प्रेजेंस में होंगी है, इस करके इत्थे आपां नूं सनलाइट भी मैंशन करनी पवेगी। एज वेल एज एक एडिशनल कंपोनेंट लीव्स विच हुंदा है जिहड़ा कि सनलाइट नूं ट्रैप करता है, दैट इज क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल भी आपां नूं इत्थे मैंशन करना पवेगा। सो इस कैमिकल रिएक्शन दे विच अपने कोले ग्लूकोज पैदा होया जिहड़ा कि कार्बोहाइड्रेट आ फूड है, ते नाल ही अपने कोले ऑक्सीजन पैदा हुई हैगी है। ते इहदे नाल ही क्योंकि वाटर जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ वाटर वेपर भी लीव विचों बाहर निकलते हैं, तो जदों इत्थे 12H2O हो गया तो इत्थे ध्यान रख लो कि आपां 6H2O भी इहदे विचों बाहर कढांगे। ये वेपर फॉर्म दे विच वाटर जिहड़े हैगे आ वो बाहर निकलणगे जिहड़े लीव्स दे स्टोमेटा चों जांदे। सो ये भी एक उसका एक स्टैप हैगा, इन्हां दे नाल ही एडिशन कीती है इसकी कि की आपां नूं इस दे विच होर करना चाहिए। एक तो स्टेट आपां नूं मैंशन करनी चाहिए है कैमिकल इक्वेशन दे विच जिहड़ा हर कंपाउंड यूज होया उसकी स्टेट किहड़ी सीगी, स्टेट ऑफ मैटर, वैदर इट्स अ लिक्विड, वैदर इट्स अ सॉलिड और अ गैस। ते आपां उस दे विच जो भी कुछ आपां होर एक्स्ट्रा यूज किया उन्होंने सारे नूं भी आपां मैंशन करना। लाइक आपां जे हीट यूज की है तो वो एरो ते मैंशन करांगे, जे एटमॉस्फेरिक प्रैशर कितना यूज किया वो आपां इस विच मैंशन करांगे, सनलाइट यूज की है वो आप मैंशन करांगे, कोई आप इस विच क्लोरोफिल वगैरह यूज की है तो वो भी आप इस विच मैंशन करांगे। तो एज वेल एज आप बहुत सारे जिहड़े इस विच कैटालिस्ट है वो भी आप इस विच मैंशन करांगे। तो दिस इज हाउ कि कैमिकल इक्वेशन जिहड़ी हैगी है वो बैलेंस्ड किवें होंदी है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस तरह व्हाट इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ये तो हमने समझाया भी सीगा। देन केमिकल इक्वेशन दे विच आपां जिहड़े रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है उन्हां दी पोजीशन दसनी हैगी है केमिकल इक्वेशनस दे विच कित्थे हुंदी है, उन्होंने आप किवें रिप्रजेंट करना है, तो वह भी अपना क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर इस विच क्वेश्चन अपने को कुछ कैमिकल इक्वेशनस है उन्होंने आप बैलेंस करना है। लाइक अपने को हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट फॉर्म hydrogen chloride. So balance it, balance and symbolize it, ये तुसी इस विच करना है। सिमिलरली तुहाडे कोल होर क्वेश्चन इस विच आ सकता है कि सोडियम प्लस वाटर, सो इन्हां दी रिएक्शन दे नाल अपने कोले सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सो इस नूं भी तुसी उस तरह सिंबलाइज करना है ते बैलेंस करना है। Balance as well as symbolize it.
ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैटालिस्ट। तो मैं ये लैक्चर दे विच दस्या भी सीगा, तो ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैगे है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ अगला पार्ट ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਂਗੇ वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।